Okay, so in this video we are going to talk about fractions. Fraction. Now, what in fractions we will include all the topics which are related to fraction, all those topics which we have learned from 5th, then 6th, and continued in the 7th standard as well. So, watch this video completely. It will be a complete revision for whatever you have done in the previous classes, as well as whatever you are going to do in the next coming classes. Okay, so there is a complete format of fractions. Now CBSE board 7th standard, it is your second chapter, fractions and decimals merged together, but we'll here this is the first part where only fractions will be discussed. And 6th standard state board, you have also this chapter number 4, fractions. So now you have to also check out entire video. And more difference between both of them is CBSE has more word problems and state board has lesser word problems, but the pattern and the questions and the format remain the same. There is nothing changes. So even for the international boards, ICSE boards, you have to check out the entire chapter because you have same studies for 5th as well as 6th. Both of the standards have fractions chapter in 5th as well as 6th, but the basic concept of fraction remains the same, the basic method remains the same, only the uh, difficulty level of the questions it increases. Okay, so now in fractions today we are going to take all these topics which includes entire fractions chapter. Okay, so now very first thing we are going to check out definition of a fraction. ओके, वे स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक से शुरुआत करेंगे पूरा. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेस, सो नथिंग इज़ लेफ्ट. यू हैव नॉट लर्न समथिंग इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, फिर भी ये वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा. ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड यू विल रिवाइज एवरीथिंग. सो वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, वॉच इट अगेन इफ यू वांट. ओके, so definition of fraction: mixed, proper, improper. These are the types of fractions: like, unlike fractions, equivalent fractions, addition, subtraction of fractions, multiplication, division of fractions. Okay, so these all topics we are going to cover today in this video. So very first thing is definition of fractions. Now what are fractions? Fraction is basically anything which has a numerator and a denominator. N stands for numerator, D stands for denominator. Numerator is always above, denominator is always below, and the line which separates both of them, we call it as numerator upon denominator, numerator by denominator, numerator upon denominator, or numerator by denominator. This is the way you call it. But moreover, we say this line as a fractional bar. This line is called as a fractional bar, or the another name is vinculum. Another name is vinculum. Okay, so it is also called as fractional bar. In most of the textbook it is given as fractional bar. It's fractional bar, but most of the mathematicians called it as vinculum. Okay, so now what basically a fraction is same as the ratio, but just representation is different. Fraction you represent it in numerator upon denominator, and numerator is to denominator is your ratio. Same thing, it's nothing different, except fraction bar, instead of fraction bar you're using this is to sign. Instead of fraction bar you're using this is to sign. That's not important. Basically I just want to tell that ratio and fraction are nothing different, but they are just written in different formats. Now division, we all know that fraction is nothing but it also resembles the division, the basic division which you do, like whatever is above it gets divided by the below, numerator gets divided by the denominator, that is nothing but your fraction. Okay, division is only representing the fraction. Ratio, fraction and division are one and the same, कुछ difference नहीं है, just writing them is a little bit different. Okay, the method or whatever you are going to do is same. Numerator upon denominator means numerator divided by denominator, and numerator is to denominator, no difference between them. Okay, this we all know, we have learned it from the very small sections. Now example is given, numerator is 3, denominator is 5, so 3 upon 5 is same as 3 is to 5 is same as 3 divided by 5. Okay,
and you know how to do the division, right? Division is very simple. So 3 divided by 3 upon 5 is same as 3 is to 5 is same as 3 divided by 5. It's nothing different. Fraction is nothing but the same thing, just the different form to write it. Okay, now we are talking about fractions. Now we know there is a numerator, we know there is a denominator, but there are three types of fractions. Basic or based on the numerator and denominator, there are three types of fractions. Very first thing is improper fraction, very second thing is proper fraction, and the last thing is mixed fraction. इम्प्रॉपर, प्रॉपर एंड मिक्स, थ्री थिंग्स है, तीन डिफरेंट चीज़ें हैं, आपको उसके हिसाब से उन्हें पढ़ाई करना है. देन द वेरी इसमें क्या है, इम्प्रॉपर में मोस्ट ऑफ द टाइम यू यूज़ इम्प्रॉपर वन. मोस्ट ऑफ द टाइम इम्प्रॉपर, जब फ्रैक्शन बोलते हैं तो इम्प्रॉपर ज़्यादा यूज़ होता है, प्रॉपर भी यूज़ होता है, बट मोस्टली इम्प्रॉपर के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं. प्रॉपर कंसिडर करो, जहाँ पे भी इम्प्रॉपर के बारे में हम बात करेंगे वहाँ प्रॉपर के बारे में भी हम बात करने वाले हैं. दैट डजंट मेक से डिफरेंट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रॉपर और प्रॉपर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है. न्यूमरेटर इज बिगर, डिनोमिनेटर इज स्मॉलर. प्रॉपर में न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज बिगर. प्रॉपर में न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज बिगर. न्यूमरेटर इज स्मॉलर, डिनोमिनेटर इज बिगर. Okay, okay, so now check out the examples. 5 is bigger, 3 is smaller. When the numerator is bigger and denominator is smaller, it is an improper fraction. Here the numerator is smaller and denominator is bigger, so this is a proper fraction. This is a very easy difference. Improper means the numerator should be bigger, proper means the denominator should be bigger. Okay, very easy concept. Now this is a special type which has a numerator and denominator. Mostly it is a proper fraction, this numerator upon denominator, but now there are three things. Mix का spelling क्या है, MIX. So there are three different things in mixed fraction, that is a integer I, a numerator and a denominator. Three things are there. Along with the numerator and denominator there is a I. I stands for a integer. That's 1, 2, 3, 4 or -1, -2, -3 or anything it can be. Okay, so any integer can be there over here. Okay, any number can be there over here. I stands for any integer, any number, 1, 2, 3 or -1, -2, any number can be there over here, and this is nothing but your regular fraction. Okay, the combination of your regular fraction and this number, these three of them together make a mixed fraction. You can check out the example 7 3/5. You should not write this 7 as here. Okay, it should not look like 73. It should look like 7 bigger one and 3/5 smaller one. Okay, always remember, many of the people do this mistake. They write 73 and then 5. This makes it 73. We don't have to write 73 upon 5. आपको 73 upon 5 नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, 7. 7 stands for integer and 3 5. ठीक है, in this way you should write. You should not write in this way. Okay, write in this way. लगना चाहिए कि 7 is different from 3 and 5. Okay, it should be in middle of both of them. Fractional bar के सामने बनाना है. Okay, so in this way this is called as a mixed fraction, in which there are three things. There is a integer and numerator, denominator. Proper improper में there is only a numerator and a denominator, but mix में एक integer भी included है attached to that numerator and denominator. Okay, this is a basic difference between proper, improper and mixed fraction. Okay, now how to convert your mixed fraction into improper fraction or sometimes proper fraction also. Okay, how will you convert your mixed into improper or proper? Mostly we talk about improper, but how will you convert a mixed into a proper or improper? Both ka method is same. Method for converting is same. So now take the example. This is 2 is the mixed fraction. Three things are there. A integer is there, a numerator is there, and a denominator is there. Therefore it is a mixed fraction, right? MIX. Three things. So three things are there: numerator, denominator, and integer. These three things are there. So how will you convert it into improper proper? There are two different methods. One is a very detailed method and one is a very shortcut method. Both the methods are right. Both the methods are acceptable by your schools, by your examination committees. So you can write both the methods, but just this is a more detailed, थोड़ा lengthy है और ये less lengthy है. It is less lengthy. You can get the answer very easily
by even on your fingertips you can get the answer, but this requires a little bit more exercise to be solved. Okay, now how will you check out? First of all, I will teach you the shortcut method because it's very easy to learn. So it's very easy. Now what is your integer over here? Integer is 2. 2 multiply by your denominator, integer multiply by your denominator plus your numerator. I'll write the formula. Integer multiply by denominator plus your numerator upon your denominator. Okay, we know this is our integer, this is our integer, this is our numerator, and this is our denominator, right? So what is the formula? Numerator, integer into denominator, integer into means multiplication, integer into denominator plus numerator whole divided by denominator, which is the same 5. So now similarly we have done over here. Integer is 2 multiply by the denominator 5 plus numerator is 3 whole upon again denominator is 5. So 2 5s are 10 plus 3 divided by 5. 10 plus 3 divided by 5, 13 by 5. Easy. First of all, always you have to multiply first and then add. First don't add this and then multiply. No, first multiply karna hai and then you have to add this 3. Okay, because many of you might be knowing about the BODMAS rule. BODMAS rule is pehle bracket, then order, then division, multiplication, addition, subtraction. In this order you should go. So pehle multiplication aata hai, then addition aata hai. So you have to first multiply and then do the addition. So you have to always remember integer into denominator plus numerator divide by d. Again denominator. Integer into denominator plus numerator divide by denominator. This is the shortcut method, shortcut formula for calculating, for converting mixed to improper. Mixed to improper. By heart this is very easy. Remember, integer into denominator plus numerator divided by denominator. Okay, very easy to calculate. But you can solve it orally also. But now when you come to detailed method में for very first thing is to split. First step, split मतलब अलग अलग कर दो. सेपरेट दिस टू, इंटीजर को अलग कर दो, न्यूमरेटर फ्रैक्शन को अलग कर दो. सो अलग अलग हो गया. व्हेन यू स्प्लिट देम यू शुड पुट द साइन ऑफ प्लस. व्हेन यू स्प्लिट देम पुट द साइन. अलग अलग करना है इंटीजर को और 3/5 को. सो यू हैव टू स्प्लिट देम एंड द साइन विच यू आर गोना पुट इज प्लस. इन दोनों के बीच में साइन कौन सा डालोगे? प्लस. ओके, नाउ ये इसको स्प्लिट करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, राइट? स्प्लिट करने के बाद तो ये 1 कहाँ से आया? नाउ ऑलवेज रिमेंबर व्हेन देयर इज नथिंग इन द डिनोमिनेटर. नाउ यहाँ 2 के नीचे कुछ था, 2 के डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं है. सो व्हेन देयर इज नथिंग इन द डिनोमिनेटर यू हैव टू ऑलवेज अज्यूम दैट देयर इज अ 1. अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यू हैव टू ऑलवेज अज्यूम दैट डिनोमिनेटर इज 1. 0 अज्यूम नहीं करना है. यू हैव टू ऑलवेज अज्यूम कि डिनोमिनेटर समझो यहाँ पे नहीं था, अभी 2 को डिनोमिनेटर नहीं था. So you have to always assume that denominator is 1. When there is no denominator given, always assume that there is denominator is 1. कुछ नहीं मतलब 1. Now 2/1 plus 3/5 ये हो गया. Now very basic thing is to make the denominator same. Solve करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है. सो नहीं चलेगा. फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, फ्रैक्शन कुछ भी फ्रैक्शन के साथ आपको प्लस करना है, माइनस करना है, फ्रैक्शन का कुछ भी करना है तो यू हैव टू फर्स्ट हैव डिनोमिनेटर सेम. आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. डिनोमिनेटर अलग होगा तो नहीं चलेगा. सो फॉर मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम यू हैव टू फर्स्ट मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स. हाउ विल यू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स? मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय ईच अदर. दिस डजंट मेक अ डिफरेंस. यहाँ पे मैंने 5 into 1 नहीं लिखा, बस 5 1 5 होता है, 3 1 3 होता है. सो नो नीड टू राइट इट बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड. बट हाउ विल यू मेक दिस 1 as 5? 1 को 5 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 को मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा. इफ यू हैव टू मेक दिस 1, आई सेड कि आप
आपका अगर फ्रैक्शन का दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा. सो हाउ विल यू मेक द डिनोमिनेटर सेम? टू मेक द डिनोमिनेटर सेम आपको क्या करना पड़ेगा, किसी मल्टीप्लाई करो एक दूसरे के साथ. इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई करो, इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई करो, डजेंट मेक अ डिफरेंस. पर यहाँ पे क्या है, 5 1 जा 5 है, 3 1 जा 3 है. सो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इंटू 1 लिखोगे नहीं तो भी चलेगा. बट यहाँ पे 1 इंटू 5 2 इंटू, अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर नीचे 1 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वॉट एवर यू डू इन द डिनोमिनेटर में वो सब ऊपर भी करना है. यू कांट फॉरगेट योर न्यूमरेटर. जो भी चेंजेस, वॉट एवर चेंजेस यू मेक इन द डिनोमिनेटर. अभी आप, हमारा मोटो क्या है कि डिनोमिनेटर सेम हमारा मोटो क्या है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है. तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यू हैव टू मल्टीप्लाई 1 विथ 5. सो फॉर डूइंग दैट यू डिड द 1 इंटू 5. पर अगर नीचे 1 इंटू 5 करोगे तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा. यू कांट फॉरगेट दिस न्यूमरेटर को ऐसे ही आप नहीं रख सकते. जैसे यहाँ पे आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दिस इज़ द बेसिक रूल फॉर सॉल्विंग एनीथिंग ऑफ द फ्रैक्शन. कोई भी दो फ्रैक्शन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका बेसिक चीज़ ये है कि आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. अभी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसे सेम बनाना पड़ेगा. अभी डिनोमिनेटर को सेम कैसे बना सकते हो, मल्टीप्लाई करो एक दूसरे के साथ. 1 5 जा भी 5 ही आएगा, 5 1 जा भी 5 ही आएगा, तो दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो. सो 1 5 जा आपने किया, 5 आएगा. तो अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नीचे 1 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द, फिर देन यू गॉट, अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया. सो नाउ डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कॉमन ले सकते हो. अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कॉमन लो, 10 + 3 करो, हो गया आंसर सी. इफ वे चेक बोथ द मेथड से हमें आंसर सेम आया है. ठीक है, बोथ द मेथड से आपका आंसर सेम है. दिस इज़ वेरी इजी मेथड, क्विक मेथड, एक्सेप्टेबल मेथड. दिस इज़ अ क्वाइट लेंथी मेथड, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड्स एंड इंटरनेशनल बोर्ड्स एंड CBSE बोर्ड्स में कभी कभी ये मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको बोला जाता है. सो यू हैव टू रेगुलाइज दिस. इट्स वेरी इजी मेथड व्हेन यू आर कंफर्टेबल कि आपको प्लस माइनस अगर आता है. जिन्होंने सिक्स में किया हुआ है उनके लिए ये मेथड बहुत ईजी है, कि दे आर यूज टू डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, LCM फाइंडिंग, जिनके लिए वो बहुत ईजी है. बट इट्स वेरी इजी. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या है, स्प्लिट करो. स्प्लिट कर दिया, 2 को अलग कर दिया, 3/5 को अलग कर दिया. अभी 2 के नीचे कुछ नहीं था, सो हमने कुछ नहीं तो 1 को अज्यूम कर लिया. अभी फ्रैक्शन को, डिनोमिनेटर अलग अलग है दोनों का, यहाँ पे 1 है, इधर का 5 है, तो यू कांट सॉल्व इट. सो फॉर सॉल्विंग इट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, बोथ को एक दूसरे के क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1 को 5 से, और इनको पूरा इससे, इसके डिनोमिनेटर से, और इनको पूरा इसके डिनोमिनेटर से. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. और नीचे अगर 5 से कर रहे हो ऊपर भी 5 से करो, नीचे 1 से कर रहे हो ऊपर भी 1 से करो. डिनोमिनेटर गेट सेम, टेक कॉमन and your answer is done. In this way you are solving it by detailed method. In this way you are converting it by shortcut method. Shortcut method is acceptable. Remember, I into D plus N upon D. It's very easy to remember. Okay, now this way, this is the conversion of mixed to improper. Now you have converted mixed to improper. Mixed to improper करना हमने अभी सीख लिया. Mixed से improper मतलब 3 फ्रैक्शन वाले से 2 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमने सीख लिया. 3 में से 2 को कन्वर्ट करना सीख लिया. अभी समटाइम्स क्या होगा, आपको 2 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया रहेगा और बोलेंगे कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. मतलब प्रॉपर या इम्प्रॉपर दिया रहेगा. यू हैव टोल्ड टू कन्वर्ट इनटू मिक्स. 2 को 3 में कैसे कन्वर्ट करोगे, 3 फ्रैक्शन वाले में कैसे कन्वर्ट करोगे, मिक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे. सो फॉर दैट देयर इज़ अ वेरी सिंपल मेथड. एवरीबडी नोज डिवीजन. सो डिवीजन करना है. सो डू डिवीजन. 13/5 था तो 5 डिवाइड बाई 13. ओके, डिवीजन क्या, आई टोल्ड यू कि ये सेम होता है. डिवीजन इज सेम एज द फ्रैक्शन. तो डिवाइड किया, यू डिवाइडेड इट. सो आपका रिमाइंडर मिला आपको 3, क्वेश्चन मिला 2, 5 इज योर डिवाइजर. दिस इज कॉल्ड एज अ डिवाइजर. इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं. दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. तो अभी फ़िलहाल हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है. ये जो आपका है क्वोशंट, ये जो आपका रिमाइंडर है, और ये आपका डिवाइज़र होता है, आपका डिनोमिनेटर जो भी आप इसको बोलना चाहते हो.
डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। सो आपको उसको इस फॉर्मेट में लिखना है। इंटीजर आपका बनेगा कोशेंट, न्यूमरेटर विल बी रिमाइंडर एंड डिवाइजर विल बी योर डिनोमिनेटर। ओके, सो दिस इज कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। So what was your quotient? Quotient was 2 लिखा, remainder was 3 and divisor was 5. That's very easy. क्या करना है, अगर improper to mix में convert करना है तो आपको division करना है और ये याद रखना है, quotient, remainder, divisor, quotient, remainder, divisor। इनकी जगह पे उनको substitute करो। quotient क्या था 2, remainder क्या है 3 और divisor क्या है 5। In this way you will convert it from mix to improper to mix। very easy to solve improper to mix comparative to mix to improper। second example देखो यहाँ पे 15/7, अगेन करो, डिवीजन किया, यू हैव नोन द फॉर्मेट क्वोशंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। तो क्वोशंट यहाँ पे था 2, रिमाइंडर था 1 और डिवाइजर वाज 7। इजी टू सॉल्व। देन चेक आउट फॉर ये, थोड़ा बड़ा ले लिया वो नंबर मैंने, 149 डिवाइड बाय 30। So how will you do this? Divide 30 divided by 149 divided by 30, 30 4s are 120, remaining is 29। इसको और फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। सो यू कैन डू दैट। इफ़ यू वांट टू गो फॉर डेसिमल दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डेसिमल में नहीं जाना है। दिस इज ओके। यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया 29। सो क्वोशंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। क्वोशंट क्या है 4, रिमाइंडर वॉज 29 एंड डिवाइजर इज 30। सो क्वोशंट, रिमाइंडर, डिवाइजर, इट्स वेरी इजी टू डू improper to mix। now I hope this is clear। now अभी यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि फ्रैक्शंस में आप अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप उसको कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते इफ़ योर डिनोमिनेटर इज़ नॉट सेम। सो अभी ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, the fractions who have same denominator, like check out here, 3/5, 4/5, 2/5, 3/5, 4/5, 2/5, ऐसे fractions को you called it as like fractions। और the fraction whose denominator is not same, like check out here, 3/2, 1/5 and 1/3, 3/2, 1/5 and 1/3। इनका डिनोमिनेटर तीनों का भी डिफरेंट है, सो दे आर अनलाइक फ्रैक्शन। इफ द डिनोमिनेटर इज सेम यू हैव टू से इट इज अ लाइक फ्रैक्शन। न्यूमरेटर कैन बी सेम और डिफरेंट, डजंट मैटर, पर अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है मोर देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, उसका सेम होना ज़रूरी है, न्यूमरेटर का होना नहीं होना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। सो डिनोमिनेटर यू शुड ऑलवेज keep on focus for denominator। so if the denominator is same they are like fractions, if the denominator is different they are unlike fractions। now how to convert, अभी आपको मैंने अभी यही पे बोला कि आप डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मतलब आपका अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे 2/1 और 3/5, डिनोमिनेटर इसका 1 था, इसका 5 था, ओके, सो यू कुडंट सॉल्व इट। सो आपको क्या करना पड़ा, ये अनलाइक फ्रैक्शंस थे दोनों, डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग है। सो फॉर मेकिंग टू एबल टू सॉल्व देम आपको हर अनलाइक फ्रैक्शन को, जो भी अनलाइक फ्रैक्शंस आपको मिले हैं उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर सॉल्विंग द डिनोमिनेटर आपको, फॉर सॉल्विंग कुछ भी फ्रैक्शन के साथ करने के लिए आपको अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन, मतलब डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो उसको आपको सेम बनाना पड़ता है। तो वो आप कैसे करोगे, सिंपल मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सिंपल मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, ये दोनों को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, वेरी इजी। मतलब 3 को और 5 को आप, इसका डिनोमिनेटर क्या है दूसरे का 2, तो उससे मल्टीप्लाई करो। 4 और 2 को आप, इसका डिनोमिनेटर क्या है 5, उससे मल्टीप्लाई करो। ओके, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब इसका डिनोमिनेटर को आपको ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है और इसके डिनोमिनेटर को आपको ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज नथिंग बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई देम। नाउ चेक आउट,
डिनोमिनेटर सेम हो गया, 5 2 10, 5 2 5 10, डिनोमिनेटर सेम हो गया. नाउ दे हैव बिकम अनलाइक टू लाइक. अनलाइक मतलब क्या, डिनोमिनेटर वॉज डिफरेंट. लाइक मतलब क्या, डिनोमिनेटर इज सेम. सो अनलाइक में दिया हुआ था, अभी आपको लाइक में आपने कन्वर्ट कर लिया. इजी. वाई ये करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज यू कांट सॉल्व एनीथिंग विदाउट द डिनोमिनेटर बीइंग सेम. कुछ भी चीज़ अगर फ्रैक्शंस की सॉल्व करनी है तो डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है. सो फॉर मेकिंग दैट यू हैव टू कन्वर्ट अनलाइक इनटू लाइक. कौन से मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. मीन्स इसका डिनोमिनेटर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, इसका डिनोमिनेटर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो. दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सम पीपल कॉल इट एज बटरफ्लाई मेथड ऑल्सो. नो. सेकेंड क्वेश्चन देखो, 3/5 2/15. इसका भी डिनोमिनेटर अनलाइक फ्रैक्शन है दोनों. सो हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस? अनलाइक मीन्स अगेन, अनलाइक मीन्स डिफरेंट डिनोमिनेटर, लाइक मीन्स सेम डिनोमिनेटर. दे आर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, उनको सेम कैसे बनाओगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. दिस मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर ये दोनों से मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर ये दोनों से मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई, यू कैन डू दैट. ओके, इट्स वेरी इजी. दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अभी ये मैंने बोला आपको कि यू कैन मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर बाय बोथ ऑफ दिस बाय बोथ ऑफ दिस. अभी ऐसे भी आप डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो, पर यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग मेथड यूज़ किया. मेथड मतलब क्या, हमारा मोटो क्या है कि डिनोमिनेटर सेम बनाना. अभी ये ज़रा ज़्यादा बड़ा हो जाता अगर मैं आप ऐसा करके बताता. फॉर एग्जांपल जो रेगुलर मेथड है हमारी, लाइक इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई किया है एंड 2/15 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है. ओके, दिस वुड बी द रेगुलर मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. पर ये सॉल्व करने के लिए थोड़ा हार्ड हो जाता. ओके, ये सॉल्व करने के लिए थोड़ा हार्ड हो जाता. तो इसके लिए हमने यहाँ पे सिंपल, हमारा मोटो क्या है, डिनोमिनेटर सेम बनाना. तो 5 के टेबल में तो 15 आता है, तो 5 3 ज़ा 15, तो नीचे 3 से क्या, तो ऊपर भी 3 से कर दो. सो डिनोमिनेटर हैज़ बिकम सेम. कुछ भी करके डिनोमिनेटर को सेम बनाओ. अगर डायरेक्टली होता है, जैसे 5 3 यहाँ पे डायरेक्टली हो रहा था, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी. सो यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो. अगर डायरेक्टली नहीं होता, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली कुछ ऐसा नंबर नहीं था, क्योंकि 5 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 5 नहीं आता. सो दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो and you will get the same denominator. But if you are not getting the denominator as same, if you are getting the denominator same by doing एक को भी मल्टीप्लाई करके अगर डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, सो डू इट. सो यहाँ पे एक को ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया डिनोमिनेटर सेम. सो आई विल नो नीड टू कन्वर्ट दिस वन. यू कैन ऑल्सो डू दिस, आंसर विल नॉट बी रॉन्ग, बट ये थोड़ा कैलकुलेशन में हार्ड हो जाएगा. सो बेटर यू डू दिस वन. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 3 नहीं आता. सो डजंट मेक अ डिफरेंस. मल्टीप्लाई बाय ईच अदर्स डिनोमिनेटर. इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द लाइक अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन. बेसिक मोटो याद रखना है. बेसिक काम क्या है, डिनोमिनेटर सेम करना. अगर एक को मल्टीप्लाई किसी से करके भी आ रहा है तो भी करो, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है एक दूसरे से तो भी करो. वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ पे 7/2 5/7. हाउ विल यू डू दिस? अगेन यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा था ना. 2 के टेबल में 7 आता है ना 7 के टेबल पे 2 आता है. सो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दिस विद दिस, बोथ ऑफ दिस विद दिस. ओके, यू विल गेट योर लाइक फ्रैक्शंस. ओके, वेरी इजी टू सॉल्व. लाइक टू अनलाइक, अनलाइक टू लाइक करना. डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो डिनोमिनेटर सेम करो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. नाउ फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे 3, अभी यहाँ पे 2 का था तो आपने इजीली सॉल्व कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका डिनोमिनेटर ये दोनों से मल्टीप्लाई करोगे. इट वॉज वेरी इजी क्योंकि 2 थे, सिर्फ एक फ्रैक्शन था और दूसरा फ्रैक्शन था. अभी यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, तो 3 डिनोमिनेटर्स है, तो किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? जब 2 था तो आपको पता था, समझो अगर ये 2 होता, देयर वुड बी दिस 2, सो यू वुड हैव मल्टीप्लाइड दिस 2 विद द डिनोमिनेटर ऑफ दिस 2 विद द डिनोमिनेटर ऑफ दिस. पर यहाँ पे तो 3 फ्रैक्शंस हैं, तीनों को आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाना है. यू हैव टू मेक 3 ऑफ दिस एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो व्हाट विल यू डू? फॉर दैट देयर इज अगेन अ डिफरेंट मेथड. यू हैव टू फाइंड आउट LCM of the denominators.
LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स. डिनोमिनेटर्स क्या थे यहाँ पे? 2 डिनोमिनेटर है, 4 डिनोमिनेटर है और 6 डिनोमिनेटर है. सो डिनोमिनेटर्स के आपको LCM फाइंड करना है. LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. नाउ दोज हु हैव लर्नड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वेरी गुड, यू हैव लर्नड इट इन प्रीवियस क्लासेस HCF एंड LCM. और ये क्लासेस में भी आप सीख रहे हो. इफ़ यू वांट टू गेट इट मोर अबाउट LCM, चेक आउट द वीडियोज़ ऑन यूट्यूब चैनल. ओके, नाउ first check out how to find out LCM. यहाँ पे I have given you small example. First of all, to find LCM, किसका किसका find करना है आपको LCM? 2, 4 and 6. You have to find the LCM of 2, 4 and 6. So how will you find that LCM? So for finding LCM, first of all write the multiples of 2. Multiples mean table of 2. 2 का table सबको आता है. So write the multiple of 2. Tables of 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. Multiple of 4, 4, 8, 12, 16. Multiple of 6, 6, 12, 18, 24. Multiple is nothing but table of that particular number. So तीनों का टेबल आपने लिखा. Now check out. तीनों में भी सबसे पहला कॉमन क्या मिल रहा है? सबसे पहला कॉमन हमें मिला 12. सबसे वेरी फर्स्ट मल्टीपल है जो कॉमन है तीनों में भी सबसे पहला. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आफ्टरवर्ड. सो दिस इज कॉल्ड एज द लीस्ट. 12 विल बी योर लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, वेरी इजी टू फाइंड आउट LCM. जो भी नंबर्स है उनका टेबल्स लिखो. जो भी नंबर्स है उनका टेबल्स लिखो. टेबल्स में से जो सबसे पहला, तीनों में भी, दो में नहीं, तीनों में भी जो कॉमन सबसे पहला मिला उसको आपको क्या करना है, LCM आपका वो होगा. ठीक है. सो नाउ मिल गया LCM क्या है 2, 4, 6 का 12. सो नाउ हाउ विल यू डू दैट? सबका डिनोमिनेटर आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? अभी 12 में. ठीक है, क्योंकि LCM सबके टेबल में 12 आता है. सो सबको किस में कन्वर्ट करोगे? 12 में. सबका डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट कर सकते हो? 12 में. कैसे कन्वर्ट कर सोगे? 2, पहले यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर क्या था? 2. तो 2 6 ज़ा 12. 1 2 3 4 5 6. सो 2 6 ज़ा 12. 4 3 ज़ा 12. 6 2 ज़ा 12. सो ऐसा करके आपका डिनोमिनेटर यू गॉट सेम. बट रिमेंबर वेरी फर्स्ट थिंग आई टोल्ड बिफोर ऑल्सो कि अगर नीचे 6 से किया तो ऊपर के इसको भी 6 से करना है. नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करना है. अगेन नीचे 2 से किया तो ऊपर भी आपको 2 से करना है. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. आफ्टर फाइंडिंग द LCM, मल्टीप्लाई जिस भी नंबर से आप कर रहे हो LCM वाला डिनोमिनेटर बनाने के लिए, सो जो नीचे करना है वही ऊपर करना है. डोंट फॉरगेट द न्यूमरेटर. ओके, न्यूमरेटर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. उसको भी जो नीचे करना है वैसे ही आपको ऊपर भी उसको सेम करना होगा. ओके, नाउ यू गॉट द अनलाइक टू. अगर 3 है, 3 से ज़्यादा आते हैं, 2 आते हैं तो इट्स वेरी इजी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो. 2 आते हैं तो वेरी इजी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और आंसर मिल जाएगा. और अगर 3 आते हैं तो 3 से ज़्यादा आते हैं फ्रैक्शंस और उनको आपको बोला है लाइक में कन्वर्ट करो. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द LCM. हाउ डू यू फाइंड द LCM? LCM पहले तीनों के टेबल्स लिखो. जो सबसे पहला नंबर कॉमन मिलता है उसको आपका होगा LCM. ठीक है. कन्वर्ट इट इनटू, कितने का था? 2 6 ज़ा तो कन्वर्ट करो. 4 3 ज़ा, देन 6 2 ज़ा. कन्वर्टेड जो नीचे क्या है वो भी वही ऊपर करना है. एंड देन यू गेट द फाइनल लाइक फ्रैक्शन. ईजी टू फाइंड आउट. ओके, इट्स नथिंग डिफिकल्ट, जस्ट स्टेप्स याद रखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल LCM निकालो, LCM की तरह कन्वर्ट करो, हो गया आपका लाइक फ्रैक्शंस. ओके, नाउ ओके, सो इसके आगे का जो भी कंटेंट है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे. टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड अनलाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, types of fractions, that is mixed, improper and proper, how to convert from mixed to improper, like to unlike, that all we have checked out in this video. Next video जो होगा उसमें we will talk about equivalent fractions. Part 2 में equivalent fraction, how to make equivalent fractions, how to add and subtract the fractions, how to multiply and divide the fractions, वो हम लोग next part में देखेंगे. And for that you have to watch the part 2 of fractions as well.